Most people think that they are smart. Some people think that they are extra smart. Okay. मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं था. मैंने कुछ लोगों से मिला. Okay. और वो लोग ब्रैग करते थे कि पैसा कमाया आज. मतलब these idiots can make money. I can make money. You had only 10 rupees in your wallet. उससे आपने एक नई शुरुआत कैसे की? जब मैं घर पर आया मेरे वाइफ ने पूछा कि घर का खर्चा कितना and how can we reduce expenses. And that is the first time I realized कि I become poor. How did you start your journey being this way? अगर आप मेहनत 100% करो, you will not lose, you will make money. वक्त लग सकता है, लेकिन आप जीतोगे जरूर. But there is a very fine line between being a gambler and being a trader. Gambling है और सट्टा भी है. आप मत कीजिए, यहाँ से भाग जाइए. So you're saying the Indian economy is definitely going to boom? 100%. FDs में कितना मिल जाएगा? 7, 8, 9%. Hardly. Here sky is the limit. If you stay invested for long term, good A-class stocks, आपके खरीदने का नीचे आ सकता है. That's possible. लेकिन after 2 years will be up. प्रकाश सर, वेलकम टू कबीर वाणी पॉडकास्ट. थैंक यू. आपको कोई इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, सब आपको जानते हैं. बट स्टिल जस्ट सो फॉर पीपल हु मे नॉट नो यू, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि यू आर अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट and you are certified financial technical, that's CFTE. Am I correct? That's correct. It's a rare qualification. There is indeed a rare qualification. आप CNBC TV पे and CNBC आवाज पे भी काफी टाइम आ चुके हो already. I'm there every day since the beginning. Since the beginning. How many years has that been? जब से CNBC शुरू हुआ. तब से आप हो, you're always been there. CNBC आवाज का मैं first guest था. They opened with me. Oh really? जब आवाज शुरू हुआ तो उसके पहले soft launch हुआ था. तो soft launch का भी हिस्सा था. Okay. Acha, and that's how it's been, and you're still a part of it. Always will be. And inshallah, you're always going to be a part of it. Always. Great, sir. The child of CNBC. You're the child of CNBC. Wonderful. You've always been known as one of the most face of technical analysts. How did you start your journey being this way? Accident. Please tell me more about it. Actually, we all think that we are smart. Most people think that they are smart. Some people think that they are extra smart. Okay. In my case, I am a smart man. I know that I'm above average. I'm an achiever. तो मुझे लगा कि मैं हमेशा सही होता. Okay. All right. And how did that turn your life? मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं था. मैंने कुछ लोगों से मिला. Okay. जो कि अनपढ़ तो नहीं थे, लेकिन अलग मीडियम स्कूल से थे, सिंधी मीडियम स्कूल से थे. Okay. और वो लोग ब्रैग करते थे कि पैसा कमाया आज. हाँ. कोई बोलता था 20,000 कमाया, कोई बोलता था मैंने आज 50,000 कमाया, कोई बोलता 30,000 कमाया. मतलब these idiots can make money. So I can make money. And ये कब की बात बता रहे हो आप? 98, 99, 2000 की बात. Okay, वो टाइम की. Okay. Yeah. Almost 2 decades ago. More than 2 decades. Around 2 decades ago. Yeah. तो मैंने बोला अगर ये लोग कमा सकते हैं, because I am a smart guy. मैंने सक्सेस लाइफ में बहुत अर्ली लाइफ में देखा हुआ. Okay. I've been a corporate guy. डालमिया डेयरी इंडस्ट्रीज में मैंने ज्वाइन किया था, जूनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय. Okay. मेरे से नीचे किसी की सैलरी थी नहीं. Okay. But within 2 years I became number 2. Really? Within 2 years? Within 2 years. I was 26. I left the job. Okay. Because my father wanted me to join the family business. Okay. तो जब मैंने फैमिली पे, तो मैंने सक्सेस काफी देखा है. और मैं हर फील्ड में मैं एक्सेलेंस की कोशिश करता हूँ. और वाकई में एक्सेलेंस मिलता है मुझे. मेहनत से सब कुछ मिलता है. तो मुझे लगा मैं स्मार्ट हूँ. दिस इडियट्स कैन मेक मनी, तो मैं भी कमा सकता हूँ. मैंने पूछा उनसे एक बार कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए. तो मुझे ध्यान है, उन्होंने बोला ट्रांसपेक्ट पैकेज. तो मैं बोला कितने का है? तो बोला 14 रुपीज का. बोला ले लेते हैं. उस समय तो कोई इजी था, कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं थी. ब्रोकर को फोन कर देते थे, बाद में भी अकाउंट खुल जाता था. आजकल बहुत डिफिकल्ट है, KYC एंड ऑल दिस. मेरे छोटे भाई का कोई दोस्त था, ब्रोकर था, उसको फोन किया, बोला मैं ले लूंगा, नो प्रॉब्लम, बाद में आके सही कर देना फॉर्म. पैसा देने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 30 डेज सेटलमेंट था. Okay. तो मैंने 1000 क्वांटिटी दी. तो 14,000 रुपए का क्वांटिटी ले लिया. वैल्यू पैसा 1 रुपया नहीं दिया. Within 1 month उसका 28 रुपीज हो गया. Really? Within 1 month's time? 20 डबल हो गया. 100%. मतलब क्या वाह, बोला 28, मतलब बेचो. तो मैंने उसको बेचा 28. मैंने पैसा कमाया 100% with zero investment. Okay. I got sucked into it. You're like sucked into it. Addiction हो गया होगा ना ऐसा लगता है. Addiction तो नहीं है, sucked into it. Right. ऐसे अगर मैंने पैसा लगाया नहीं 30 डेज में और पैसा मिलता है, तो मैंने खाली 1000 क्यों कमाया? Why did not take 5,000? हाँ. तो मुझे रिग्रेट फीलिंग होने लगा. That means everything is in my control. I'm smart. Nonsense. I'm not smart. Something happened. Nonsense. मुझे पता नहीं पड़ा. I got sucked into it completely. तो I became slowly I became a gambler. एक जुआरी बन गया, लेकिन मुझे उसका अंदाजा नहीं, पता नहीं पड़ा. And I became a gambler. Okay. In the process, कुछ वक्त लगा. अभी खरीदने के बाद बेचो
और बेचने के बाद और ऊपर जाता है तो दुख होता है, जैसे हार्ट अटैक हुआ, हाँ ऑफ कोर्स। फिर लगता है कि ये बेचना नहीं चाहिए, तो हम उसको होल्ड करते हैं। हम्म और खरीदने के बाद अगर नीचे आता है तो लगता नहीं ये तो ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं राइट हूँ ना, हाँ, मैं स्मार्ट हूँ ना, अपना मैं ईगो intelligent हूँ। अपना ईगो नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ, हाँ मैं 1.5 जानू, हाँ उससे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वाकई में ऊपर भी जाता है। यू फील यू आर राइट, सी यू आर राइट, फिर एक प्रोसेस बन जाता है कि यू आर राइट, इट्स योर राइटनेस एंड योर रॉन्गनेस विल मेक यू मनी। एंड आई केप्ट ऑन लूजिंग मनी, बट आई वाज राइट थिंकिंग, सो आई केप्ट ऑन एडिंग, बिकॉज इफ इट कम्स डाउन, यू एड मोर, योर कॉस्ट कम्स डाउन, you don't become right, हाँ, you just end up losing more money, you end up losing money। right? ये मेरे साथ चलता गया, मुझे हाँ। पता नहीं सभी के साथ होता है। हाँ, of course, absolutely। तो मैं भी एक नोविस था, हाँ। मेरे पास पैसा बहुत था, करोड़ों रुपया था, मेरा कंफर्ट था लूजिंग करने, एंड आई केप्ट ऑन लूजिंग मनी। अगर पैसा उतना नहीं होता तो मैं जल्दी निकल जाता। हाँ तो एक कंफर्ट था, आई कुड टेक द पेन, आई लॉस्ट मनी, बट यू डिडंट वांट टू फेल्ट के नहीं मैं गलत हूँ, ऐसा कभी वो फील नहीं अकर भी नहीं हुआ। हाँ अंदाजा नहीं हुआ, नहीं अकरेंस हुआ उसका कुछ कॉन्शियस नहीं था। आई एम राइट ऑलवेज, मोस्ट पीपल थिंक दे आर राइट। तो आई लॉस्ट मनी। एक टाइम आया, मुझे पता है कि जब मैं दवाई की दुकान पे गया, ओके, मैंने उनसे दवाई मांगी, एम्लोपेन, तो उसने मुझसे 12 रुपए, ओके, और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि आपने वो इतना सारा पैसा ऑलरेडी लूज कर दिया था एंड यू हैव कम टू दैट लेवल। अरे मुझे बोला ले लो, मुझे बाद में देना। मेरे नेबर था, हाँ, मैंने बोला नहीं मैं आता हूँ, मेरी आदत नहीं किसी से पैसा लेने की, उधार लेने। बोला मैं आता हूँ, मैं मेरे छोटे भाई के पास, बोला मैं मुझे 2 रुपया देना। तो उसने क्या चाहिए, दवाई चाहिए, कौन सी चाहिए, एम्लोपेन। बोला मैं मंगाता हूँ। उसने अपना ड्रॉवर खोला, उसके सिर्फ 55 रुपीज थे। ओके, मेरे ध्यान, और 10 रुपए मेरे पास आज भी है, मेरे वॉलेट पे रखा है। दैट 10 रुपीज हाँ, दैट मुझे याद दिलाता है हाँ, यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हाँ, मतलब यहाँ पर वापस पॉसिबल। ऑल इस मेरे वॉलेट में रहता है। Oh, so how did you take your stuff from where you had only 10 rupees in your wallet, which you still keep? उससे आपने एक नई शुरुआत कैसे की? तो उसके बाद मैं घर पर आया, मेरे वाइफ को पूछा कि घर का खर्चा कितना, एंड हाउ कैन वी रिड्यूस एक्सपेंसेस। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि आई बिकम पुअर। ओके, दैट हम 6 फीलिंग। लोग थे, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ, उसका बेटा, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मैं, हम 6 लोग थे, और हमारे पैसे नहीं। And which year is this? ये 2000, 99, 2000। अच्छा, same era की बात हो रही है। मेरी उम्र थी उस समय 47। 47. टुडे आई एम 71। No, mashallah, you don't look 71, but great, yeah. Your energy is so different. तो वाइफ ने, हम लोगों ने एक्चुअली कैलकुलेशन किया, तो पता पड़ा कि 15,000 रुपये महीने का खर्चा है। तो शी टोल्ड मी अगर आप मुझे 500 रुपये दिन का दोगे तो मैं घर चलाऊँ। 500 rupees a day. हाँ, मैं घर चलाऊँ, ऐसे मैं दूंगा, क्योंकि मुझे उसका फिक्र नहीं था, क्योंकि हमारे पास 4.5 लाख रुपए का बैंक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था। हाँ। आई तो वो तो मैं दे दूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ अगर मैंने लॉस किया, कोई तो है जिसने मेरा पैसा कमाया। हाँ, मेरी हार में किसी और की जीत है। अगर वो आदमी कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? कुछ तो तरीका हो कमाने का। Okay. उस समय मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि मुझे ये धंधा सीखना पड़े। आई एम अ फाइटर बाय नेचर, मुझे पता नहीं, आई एम फाइटर बाय नेचर, आई डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। Okay. मुझे ये धंधा सीखना पड़े। कहाँ से सीखना पड़ेगा? मुझे नॉलेज जीरो। Okay. क्योंकि लोग पैसा बनाते हैं, सबको बोलते हैं मैंने पैसा बनाया, जो लॉस करता है कोई किसी को नहीं बोलता, उनको शर्म आती है। Of course. तो मैंने भी किसी को नहीं बोला कि मैंने लॉस किया। मेरे बड़े भाई को पता नहीं, छोटे भाई को पता, बड़े भाई को पता नहीं, मेरे इन-लॉज को पता नहीं, मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं, मैंने बोला नहीं। तो मैंने ये वहां से मेरी जर्नी वहां से शुरू। Okay. इट्स लाइक अ फाइट बैक, पता नहीं कहां से हुआ, एक किताब ले ली, वो पकड़ लिया, वहां से शुरू कर लिया। और कौन सी किताब थी वो जो? 2 किताबें थी, एक तो थी एडवर्ड एंड मैगी की, Okay. और एक मार्टिन फ्रीमैन। Okay, and it's all about learning how to do टेक्निकल एनालिसिस। technical analysis. Okay. मुझे पता नहीं टेक्निकल एनालिसिस क्या था, फंडामेंटल एनालिसिस क्या था, मुझे पता नहीं। ये किताब टेक्निकल एनालिसिस की, तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस शुरू की। Okay. और मैं यहाँ पर डीप में घुस गया। घुसते घुसते मैं यहाँ पर आज हूँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। एक बात तो पक्की है, अगर आप मेहनत 100% करो, जेन्युइन एफर्ट हो, you will not lose, you will make money, you will win for sure 100%। वक्त लग सकता है, लेकिन आप जीतोगे जरूर अगर आपका मेहनत 100%, अगर मेहनत जेन्युइन एफर्ट से। genuine. You can't lose, you cannot, nobody can lose। Absolutely. But you know, एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई पहले, जो आपने बोला कि you started becoming a gambler. Yeah. You know, आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के माइंड में यही है कि स्टॉक मार्केट का आप नाम लो, अरे भाई जुए की बात नहीं है, जुआ नहीं खेल रहा हूँ। But there is a very fine line between being a gambler and being a trader. आप वो कैसे मेक श्योर करोगे कि आप वो क्रॉस ना करो, एंड आप क्या जो न्यू जनरेशन ट्रेडर्स हो
उनको एक क्या सलाह दोगे हाउ टू नॉट क्रॉस दैट फाइन लाइन बिटवीन बीइंग अ गैम्बलर एंड बीइंग अ ट्रेडर? दो बातें. एक्चुअली स्पेकुलेशन कैन बी अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, कैन बी अ प्रोफेशन. एक धंधा बन सकता है. इट्स नॉट अ सट्टा. हाँ. इट इज नॉट अ सट्टा अगर आपको धंधा करने आता है तो. अगर नहीं करने को आता है तो फिर तो गैम्बलिंग है, सट्टा भी है. आप मत कीजिए, यहाँ से भाग जाइए. सिंपल. अगर करना है तो सही कीजिए, एक धंधे की तरह लीजिए. देन इट्स अ प्रोफेशन. वन. आप कसिनो जाते हैं, आप कसिनो जाते हैं, वहां पर पैसा कमाने जाता है, लक करने को आश करता है, लेकिन वो पैसा मिलता नहीं क्योंकि वहां पर जो एज है वो फेवर कसिनो के इन फेवर में, वहां पर लूज करते हैं. लेकिन आप जाते हो वहां मजा करने, लॉस करके आते हैं. यू गो टेक मनी, क्या इतना पैसा मैं लेके जाऊंगा, मजा करके आऊंगा. दैट मींस यू गो विद एन इंटेंट टू लूज मनी. हाँ. जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, यू गो विद एन इंटेंट टू मेक मनी एंड यू लूज मनी. हाँ. बोथ द प्लेसेस आपका लॉस है, लेकिन यहाँ आपका इंटेंशन अलग है. एक में आप पैसा लॉस करने जाते हैं कसिनो में, to have fun. यहाँ पर पैसा कमाने जाते हैं. Okay. तो here you want to win. The crux is you should not be wanting to win. You should try to play it as a profession. Okay. And how can one learn how that profession? To manage your risk. Manage your risk. And how does one manage this? देखिए, मार्केट तो वही करेगा जब मार्केट को करना है. आपके कंट्रोल में मार्केट नहीं है. अगर मैंने कुछ जैसे ट्रांसफैक्ट पैकेजिंग है, मैंने 14 रुपए में लिया, वो 14 से 28 चला गया, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो खाली होल्ड किया था. हाँ. क्या कर सकता था मैं? कुछ नहीं. ज्यादा तो मंदिर जा सकता था, हर मंडे को नारियल फोड़ देता था, या मस्जिद जाता, या चर्च में जाता कि मेरा 14 का 28, मैं कर क्या सकता था? और तो कुछ नहीं करता. आखिर 14 से 28 हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ किसी ने खरीदा मेरे खरीदने के बाद, तो मैंने प्रॉफिट किया. अगर वो मेरे पास नहीं होता तो मैं प्रॉफिट नहीं करता. मैंने प्रॉफिट तब किया क्योंकि मैंने खरीदा, और मेरे खरीदने के बाद किसी और ने खरीदा. तो लोग क्या करेंगे मुझे पता नहीं पता. तो मेरे कंट्रोल में तो कुछ है ही. मेरे कंट्रोल में सिर्फ एक है, लॉस कंट्रोल इज इन माय कंट्रोल. मेरे आई कैन कंट्रोल. इफ इट कम्स फ्रॉम 14 से अगर 12 रुपए आता या 10 रुपए आता, अगर मैं निकल जाता, वो कंट्रोल मेरे पास. प्रॉफिट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लॉस मेरे कंट्रोल में. इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्क इज इन माय कंट्रोल एंड आई शुड मैनेज ओनली रिस्क. अपसाइड क्या मालूम क्या करेगा. मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू. Market is not going to do what I want, but I have to do what I have to do. That is in my control. But how does one ensure what market is going to do? अगर जैसे आपने बोला कि 14 रुपीज आपने इन्वॉल्व किया, 14 रुपीज के अंदर चलो 12 रुपए चले गए, 11 रुपए चले गए, बंदे को पता कभी चलेगा कि हाँ बस हो गया, अब निकलो, क्योंकि हम जैसे आपने बताया ना कि नहीं मैं तो राइट हूँ, ऊपर ही जाना है. 99% people think that way only. In fact, I have been into that scenario. बेको ऐसा था, नहीं ऊपर जाएगा, बट देन आई नो आई केप्ट लूजिंग मनी. देखिए, मार्केट में आपके पास एक एज चाहिए. ओके. वो एज क्या होता है? यू कांट बी सर्टन कि नेक्स्ट ट्रेड जो आप लोगे वो सही जाएगा. यू कांट बी सर्टन. बट ओवर सीरीज ऑफ ट्रेड आपको पता होना चाहिए कि 10 में से 6 मेरे फेवर में जाएंगे, या 10 में से 7 मेरे फेवर में जाएंगे, या 10 में से 8 मेरे फेवर में. 2-3 तो गलत जाएंगे. वो एक एज चाहिए. ओके. वो एज होना जरूरी है. तो मार्केट का जो हम बोले कि ऑन अ सीरीज बेसिस आउट ऑफ 100 ट्रेड्स आई नो आई विल बी प्रॉफिटेबल, बट व्हिच ट्रेड विल गो प्रॉफिटेबल आई डोंट नो. द नेक्स्ट ट्रेड विल गो प्रॉफिटेबल आई डोंट नो. वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके. एंड कैन समवन ट्रैक दिस प्रोबेबिलिटी? 100%. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल. यू हैव टू ट्रैक इट. कोई ऐसा ट्रिक्स? नहीं, कोई ट्रिक्स क्या होता है इसके अंदर? तो कुछ आई डोंट नो व्हिच ट्रेड इज गोइंग टू गो प्रॉफिटेबल और नॉट, बिकॉज़ व्हाट पीपल आर गोइंग टू डू आई डोंट नो. मैंने अगर खरीदा, उसके बाद कौन खरीदेगा मुझे पता नहीं. तो हाउ कैन आई ट्रैक दैट? बट आई शुड हैव देयर सर्टेन पैटर्न्स इन द मार्केट. दे टेंड टू प्रोड्यूस सर्टेन रिजल्ट्स. समटाइम्स इट डज नॉट. ओके. एंड हाउ मच लक इज मैटर ऑफ दिस? जीरो. लक कुछ मैटर ही नहीं है. टू हेल्प विद इट. ऐसा लक है तो फिर डाल दो. यू कैन टॉस एंड मेक मनी. And I've done it. You can toss and make money. Because पता नहीं कौन सा राइट जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा. अभी आप कॉइन निकालते हो, कॉइन निकाल के आप टॉस करते हो, 50% चांस विल बी राइट एंड रॉन्ग. अगर आपका शोले का कॉइन है, स्लाइटली विद एज. सलीम साहब का जो कॉइन था वो तो राइट ही था हमेशा, लेकिन अगर शोले जैसा कोई कॉइन है जो कि स्लाइटली विद सम पैटर्न्स विद गोस इनटू योर एज, इसलिए मैंने पहली बात एज की. तो क्या आपको कोई पैटर्न है जो एज आपके फेवर में, देन यू कीप प्लेइंग दैट पैटर्न, यू बिकम मास्टर ऑफ दैट पैटर्न. यू विल बी मोर राइट देन रॉन्ग. Which one trade next time? I don't know. Okay. But over a period of 10 trades, or period of 50 trades, or period of 100 trades, you'll be more right than wrong. And if you make more money and lose less money, you are in business. Then the gambling changes to trading.
it's a trade because you're managing risk. Than managing risk. Great. Now, when person comes into a trading lifestyle and if you want to make a profession, जैसे हम trading को stock market को हमारा profession बनाना चाहते हैं, तो उसमें clean और peace mindset कितना important है? Most important. And I how meditate every day. you meditate every day? Okay, can you tell me your daily routine? What happens from morning to evening? ऐसा है कि I wake up around 6 o'clock. Okay. By 6:30, I'm on my room where I have a special room where I trade and I do my show from there. The first thing I do is meditate for around 25-30. Okay. Always, every day. It's like a reset button. Refresh button बोल सकते हैं, reset कर सकते हैं और reboot कर सकते हैं. Because आज मैं जो भी हूँ, मेरे पास memories हैं in the past. Okay. That screws up here. All my memories, it screws me up here. My imagination screws up my future. So that's वो आप control करने के लिए उसको To be meditate in the now, you have to reset everything. कि कल क्या हुआ आप भूल जाओ ना, उसको छोड़ो नहीं. So you have to reset. So meditation helps a lot. Helps a lot. Okay. I don't do any physical exercises. Zero time ही नहीं मिलता. तो वो 7 बजे तक मेरा हो जाता. Okay. By 7 o'clock I sit on my desk. मेरे पास computers है. I set up my screens and then I shortlist few stocks for today. Okay. तो कल का ओवरनाइट मेल्स वो खत्म करता हूँ. 8 o'clock my show start and I'm there sitting until 3:30. ट्रेडिंग मेरा 3:30 तक खत्म होता है. Okay. उसमें ट्रेडिंग होता है. आई टीच लाइव मेंटरिंग. लाइव मेंटरिंग में मेरा स्क्रीन है, मैं वो दिखा देता हूँ. लोग मेरे स्क्रीन देखते हैं, मेरे सेटअप्स देखते हैं और वो सीखते हैं लाइव विद मी. दे लर्न लाइव विद मी. Okay. एंड आई टीच देम क्या खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, कहाँ खरीदो, कहाँ बेचो, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए. आई टीच देम लाइव. Okay. एवरी डे. Okay. स्टूडेंट्स हैं विद वाया जूम मीटिंग, तो वो सीखते हैं 3:30 तक. वो खत्म हो जाता है. टेल देम थैंक यू वेरी मच. उसके बाद 3:30 बजे या 3:35 को मैं एक रिकॉर्ड करता हूँ 1 minute वीडियो ऑफ इंस्टाग्राम. उसके पहले मैं रिकॉर्ड करता हूँ करीब 1.5 minute ऑन यूट्यूब. क्या मुझे कल का मार्केट कहाँ लगता है, कहाँ क्रूशियल पॉइंट्स, वो रिकॉर्ड करके मैं मेरे नेव्यू को भेज देता हूँ. ही सेंड्स इट बैक टू मी बाय 4 o'clock or 4:30. जब भी भेजता है मुझे, आई बिगर विदाउट लुकिंग एट इट, आई पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. दैट्स इट. ये करीब 4 तक बच जाता है. 4 से 4:30 तक आई गो एंड स्पेंड टाइम विद माई वाइफ, हैव टी विद हर, हैव समथिंग टू ईट, नाश्ता कर लेता हूँ, थोड़ा बैठा होता हूँ, यहाँ की बातें करता हूँ. भाई 6 o'clock तक मैं देखता हूँ कुछ मेरा मेल्स आया है, उसको मैं अटेंड करता हूँ. 6 o'clock तक मेरा डेटा आ जाता है. Okay. जब डेटा आता है तो उसके बाद मैं फिर उसको एनालाइज तो नहीं करता आजकल, बिकॉज इट्स इंस्टेंटेनियस वन. I mean, you've been doing it for so long. आपको शायद देख के पता चल जाता होगा क्या होना है. पहले मैं एक चार्ट को देखता था 1 घंटा 1.5 घंटा एक चार्ट को देखता था. देखता था कल क्या लगता है. आज मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगता. मे बी 1 सेकंड में 2-3 चार्ट देख लेता हूँ. Okay. Just glance through. जस्ट ग्लांस थ्रू. तो उसमें निकाल देता हूँ कल ये 4-5 स्टॉक ऊपर जाएंगे. दैट्स इट. उसको मैं एक ग्रुप बना के रख देता हूँ, तो नेक्स्ट डे मेरा लाइफ इजी होता है. अच्छा. दैट आई डू इट एवरी डे. Okay. एवरी डे. फिर और काम करता हूँ. देन आई डू रिसर्च, रीड सम बुक्स. ये सिलसिला चलता रहता है. 7:30 तक हैव डिनर, 11:30 आई हैव माय लंच. सो ब्रंच हो जाता है वो. देन बाय 9:30 आई ऑफ टू स्कूल. Okay. Again, the So 6 Monday to o'clock. Friday is like this. Saturday, Sundays I travel a lot. Okay. You come to the podcast, of course. पॉडकास्ट के लिए आ जाता हूँ, लेक्चर्स के लिए जाता हूँ. Okay. देखिए आज एक लेक्चर मैंने कैंसिल किया Okay. बिकॉज ऑफ योर पॉडकास्ट. Oh, how kind. क्योंकि आई हैड कमिटेड. Okay. तो उन्होंने मुझे बोला कि नेक्स्ट वीक करेंगे. आई सेड हाँ नेक्स्ट वीक करेंगे. सो आई डिड इट. सो आई हैव टू ट्रैवल नेक्स्ट वीक. इट्स आउट ऑफ बॉम्बे. Okay. मैं नेक्स्ट वीक भी शायद मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि आई हैव जस्ट रियलाइज नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू गो फॉर अ टॉक. Okay. Cool. So you I will have call him up tomorrow and tell him sorry, I will not do next week. I will do it the week after. the week after. So you have a very happening life for a 70-year-old. How do you get your energy? Why did you tell me? Why did you remind me of your 70? No, because I don't believe I you're am 70. That's why I'm young. you're only 70-year-old young. That's why I'm you're young, 70-year younger. That's what you wanna I'm call young. it. I to help with my age. I'm young. You're young. All right, let's Absolutely call that. मैं आज भी Because skiing I've करता not seen someone so energetic. I think I might even get tired in front of you right now. That's what I feel like. So how do you get those energies? हूँ. I don't know. Because क्या था कि जब मैंने शुरू किया था एक चिंगारी लगी, तो शायद वो चिंगारी आज भी है. Then I'm running to stand still. शायद possible. It doesn't But matter. You're not going to fall. Is that what it is? That's what the chingari has kept you in for? I don't know. क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, दिलो दिमाग से करता हूँ. एब्सोल्युटली दिल से करता हूँ. अब मैं स्कीइंग करता हूँ 1976 से. 48 इयर्स हो गए, हर साल जाता हूँ.
And till date you ski as well? Yes. One of your favorite sports? No, my favorite sport is flying. Paragliding. Paragliding, gliding is my favorite. Paragliding, I would love to do anything, but skiing मैं continuously कर रहा हूँ. Wonderful. Every year I go to Gulmarg for skiing. Every year without fail. February का भी मैं जाऊँगा, definitely, 100%. Inshallah. पहले स्पीड थोड़ा ज्यादा था, अब स्पीड थोड़ा कम है. आई एम मोर लीजर स्कीयर. Okay. पहले तो आई वो करता था, अब वो नहीं करता. Okay. बट आई प्ले अ स्पोर्ट, ऑलवेज स्टक टू इट 100%. Okay. And you're going to enjoy that sports all the way. As long as I live. Wonderful, wonderful. How much of this जो चिंगारी आपकी लगी थी, let's go back to that particular aspect for it. ये जो आपने अपना podcast हुआ था उसके पहले आपने हमें बताया that you come from a very humble background. Yes. आप I think 120 feet के रूम में से आप निकले हो and you have created an empire for yourself now. आपके फैमिली के साथ भी जो हादसा हुआ था, I think your dad had got laid off during Diwali. उनका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था, उनका जो स्ट्रेंथ था वो टाइम पे, वो कितना आपको इन्फ्लुएंस किया टू बी हु यू आर टुडे? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बताता हूँ जी. हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं पढ़ाई के लिए. हाँ. दैट इज लिटरेसी. द रियल लर्निंग इज फ्रॉम होम. द रियल लर्निंग इज फ्रॉम माय पेरेंट्स ऑलवेज. वो जो मॉरल वैल्यूज मिलते हैं, वो जो होता है ना, दैट स्टेज विद यू फॉर लाइफ. आज भी सपोज एट सम क्रॉसरोड्स, तुम्हें पेरेंट्स क्या करते हैं, व्हाट माय मॉम वुड हैव डन और व्हाट माय फादर वुड हैव डन, हाउ वुड ही हैव रिएक्ट. मुझे पता हूँ, एक काफी मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हूँ. हम रहते थे 120 स्क्वायर फीट में. अंटिल माय एसएससी आई वाज लिविंग इन दैट हाउस इन परेल. 120 स्क्वायर फीट का था और हम पांच लोग थे, मेरे फादर और 3 था. माय फादर इज फ्रॉम कराची, आज को पाकिस्तान बोलते हैं. जो लास्ट वोट आया था उसमें थे वो. अगर वो लास्ट वोट पे नहीं होते तो शायद मैं वहां पर होता. तो उन्होंने लाइफ वहां शुरू की एज अ सेल्स, एंड ही लॉस्ट हिज जॉब. ही गिव अप हिज जॉब ऑन अ दिवाली नाइट बिकॉज वन ऑफ हिज बॉसेस वाज वेरी रूड. इससे मैं सहन नहीं कर सकता. तो उनकी सैलरी थी लास्ट 290 रुपये महीना. दैट मींस 10 रुपया भी दिन का नहीं कमाते. राइट, करेक्ट. तो ये 10 रुपए का कनेक्शन आज तक मेरे पास है शायद. समथिंग टू डू विद द नंबर 10. आई थिंक सो, मे बी इट्स देयर, आई डोंट नो व्हाई. ओके. तो 2-3 दिन रुके कि अब मैं सेठ के लिए 60, 70 और 80 रुपया कमाता हूँ, तो क्या मैं खुद के लिए 10 रुपया नहीं कमा सकता? वही मुझे वापस हॉन्ट किया जब मैंने बोला, जब मैंने लॉस किया है किसी और ने कमाया, वो कमा सकता है, क्या मैं नहीं कमा सकता? ये मैंने सुना था, ये मैंने 6-7 साल की उम्र होगी मेरी, बट ये मैंने कॉन्वर्सेशन मैंने मदर और फादर का सुना था. तो उसे बोला मैं धंधा करूँ, देखिए मैं हॉकर. घर घर जाके बेचते थे, दुकानदार जाके बेचते थे और बेच कर आते थे और पैसा कमाने. मुझे याद है फर्स्ट डे को उन्होंने 32 रुपया कमाया, मुझे ध्यान. अब रिसेंटली अराउंड अ मंथ बैक और सो मैं गया था प्रार्थना समाज में रिलायंस हॉस्पिटल फॉर अ टेस्ट. तो प्रार्थना समाज में मैंने वहां पर गुजरात में टोल में वाई 4 दुकानें हैं यहाँ पर. मैं बचपन में यहाँ पर आता था और यहाँ पर मैं सप्लाई करता था. मेरे फादर बोलते थे इसको साड़ी दे के, मैं साड़ी दे के आता था. कब बोलते थे पैसा ले आ, तो पैसा मेरी माँ बोलती थी कैसे छुपाना, जेब में हाफ पैंट में मैं आता था. तो दुकान का नाम था एस इब्राहिम. ओके. मोटा फोम, दमानिया, और एक रफू वाले की दुकान थी हाजी अहमद. ओके. मैंने वाइफ को बोला कि नेक्स्ट वीक में आके इनसे मिलूंगा. तो नेक्स्ट वीक में जाकर मिलकर आया उन दुकानों से. एस इब्राहिम, उनके ग्रैंडसन थे, बेटे थे. दमानिया के ग्रैंडसन थे, बेटे थे, ग्रैंड डॉटर थी. बोला कि हाजी अहमद की डेथ हो गई और वो उनकी फैमिली सूरत में चली गई. ओके. और दमानिया की दुकान कल बंद हुई, नहीं तो मैं उससे मिल जाता. बट शी इज डेड. ओके. शी इज पास्ड अवे. लेकिन मैं मिलने गया क्योंकि हमारा घर चलता था उसे. एंड आई रिमेम्बर 10-12 साल की उम्र में उनको साड़ी नहीं आता था. तब उन्होंने मुझे बोला कि रंगारी से फादर 6-8 घंटे में रंगारी का रंग करके देते थे साड़ी. ऐसे नहीं. हाँ, वो रंगारी के पास मैं भी जाता था. मैं रंगारी का माल देख के आता था, वहां से पिकअप करके. 10-12 साल की उम्र, तो वो स्ट्रगल मैंने देखा है. राइट. आज मुझे बोलेंगे तो रंगारी मौला है वहां पर, लेकिन मुझे पता नहीं, एक दिन मैं शायद उधर चला जाऊँ, उनसे मिलके आ जाऊँ, देख कर आऊंगा. ये रूट्स है, उसको कैसे बोल सकते? ऑफ कोर्स. तो हम जो भी सीखते हैं वो मॉरल वैल्यूज वहां से सीखते हैं. तब उन्होंने मुझे बोला कि आपके फादर के पास वेस्पा गाड़ी थी. ऐसे हाँ. बोला सफेद कपड़ा शर्ट पैंट पहनते. ऐसे हाँ. बोला हिमालय में रहते थे, जहाँ पूरा हवेली सी पे हमारा घर था. हाँ. बोला आपकी दुकान पर आया अभी टोली, एंड टोली आपके भाई थी, उसके बाद एक जीप थी. ऐसे हाँ. वो लोग जीप चलाते थे, रेस कोर्स में घोड़ा चलाते थे. ऐसे हाँ. घोड़े का नाम था तोरक. वो उठे, उन्होंने मुझे 2 अत्तर के दिए. बोला एक बड़े बाइक तो ये आपके लिए अत्तर.
आई वाज टच्ड, आई वाज टच्ड। जो भी हम सीखते हैं ना, सीखते हैं अपने घर से, जो वैल्यूज वहां से मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते। स्कूल कॉलेजेस में खाली किताब मिलती है, उससे आपको जॉब मिलेगा, जॉब मिल सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज जो आपको अपने आप को कंडक्ट करते हैं वो तो आपको वहीं मिलेगी, घर पर मिलेगी, घर पे थ्रू योर अगर आपने, एक्सपीरियंस। मुझे ध्यान है एक बार मेरे फादर ने अपने बॉस को देखा अपनी दुकान के बाद जा रहे थे, तो गए उनके पास, भगवानदा सेठ आइए, उनका नाम भगवानदा सेठ था, आइए प्लीज कम। तो उनको घर पे अपने सीट, अपने गद्दी पर बिठाया, हाँ, बोला यहाँ कैसे, बोला मुझे कुछ माल चाहिए, बोला मैं लेके देता हूँ, क्या चाहिए, बोला वो दे नहीं रहा है, मेरे फादर बोला मैं भी दिलाता हूँ। चाय पिलाया उनको, तो मेरे फादर ने, मैंने देखा कि मेरे फादर ने उनके पैर छुए, मेरा बड़ा भाई था उसने भी छुए, मैंने भी पैर छुए, क्योंकि फादर के बॉस। काफी सालों बाद मेरे नाना की डेथ हुई, तो भगवंदा सेठ आए थे कंडोलेंस के लिए, तो मेरे बड़े भाई ने फिर उधर उनके पैर छुए, मैंने भी छुए, मेरे छोटे भाई ने भी छुए, मेरा बेटा था मोहित, बहुत छोटा था, बोला मोहित पैर छुए, तो मोहित ने उसके पैर छुए। लेटर ये आदमी, ये है कौन, तो ये दादाजी इज बॉस, वंस अ बॉस ऑलवेज अ बॉस, ये वैल्यूज है। रिलेशनशिप कितने अनमोल होते हैं ना ये चीजों में, लाइक यू लर्न सो मच एक्सपीरियंसेस। आई मीन आई कैन ओनली इमेजिन आप जो बता रहे हो एज ऑफ राइट नाउ, एंड आई फील दैट कि आपके जो यू गॉट दैट परवरिश आपके जो पेरेंट्स ने आपको दी है, दैट्स सो पावरफुल. You know, it just reminded me, like while you were talking, I could think of my Nana at that point of time. Very similar thought process. And, you know, even I got into that zone. So coming from that particular lifestyle and your thought process of being so humble, आप जब भी grow हो रहे थे, started creating the empire, how that resonated you and how that always kept you on ground? I don't know whether it's empire or not. I don't care about it. I feel so. I'm just I think maybe working, that's what it is, no? It's you feel it's not an empire is because you're so grounded. I'm just working from morning to evening. I'm trying to live one day at a time. And you love what you do. Absolutely. I think I was born for this. And it's your passion. I think I was born for this. Wonderful. I think I was born for this, not for anything else. Nothing but. मैंने business किया, पैसा बहुत कमाया, लेकिन I was never comfortable. You're not happy. Not happy in terms. हाँ. यहाँ पर I work, मुझे पता नहीं पड़ता 16 to 18 hours a day I work. मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे थकान नहीं होती. थकान नहीं होती. At the end of the day, so you're is it still a passion relaxed. or what? मुझे पता नहीं, but I think I was born for You're this. born for this. I know this subject like a back of my hand. हाँ. अभी मैंने एक CFT एग्जाम पास किया था. हाँ. CFT is Certified Financial Technician. मैंने पास किया 2006 के. Okay. Why did I do it? Just to check क्या मुझे आता है क्या नहीं आता. हाँ. As a second. It's a challenge for yourself. हाँ. मैं, और ये it's a tough exam. How many people are CFTs in the world today? Are 2024. There are only 3,000 CFTs in the world. Oh, is that so? Is that such a small number? Yeah, 3,000 in the world. इंडिया में 290 है. Okay. आज के तारीख में 2024. I was the CFT in 2006. तो शायद maybe one of the first few. No, the first year. Absolutely. Yeah. But this is very small. There are more chartered accountants, more chartered doctors there. There are more orthopedic surgeons there. There are more dentists there. There are more cancer surgeons there. हाँ, but CFTs are very less. But I've done it. And you have done, and you are one of the very It's a few benchmark ones. qualification. Absolutely, absolutely. You know, you're also has been awarded by Narendra Modi ji for Viewers' Choice Award. Can you Best tell me more technical about analyst, that? Viewers' Choice Award. Viewers' People Award. voted for it and I could get it. How was that feeling, and when was this? Tell me more about that. I don't remember the year, but I was good, I know it. Lekin viewers voted for me was something different. I was in a state of shock. I did not even utter a thank you there. Thank you there. अच्छा वो एकदम Nothing. I was not prepared. Nothing. मुझे पता नहीं था. They called me and I went there. मुझे बोला भी नहीं गया कि आपको मिलेगा. मैंने utter shock पूरा time के अंदर. I just they announced my name. I went up. I picked up and came down. That's it. Really? That's it. I didn't even say anything to him. Nothing. कभी होश आया कह रहे ये सच में हो चुका है. मुझे आज भी मिला है मेरे हाथ पे. I just did like this. I could have shown my 10 rupees. I was carrying in my wallet कि ये यहाँ से मैंने शुरू किया. I could have said, but it was not there. Not there. It was not. I think वो है ना state of mind शायद इतना वो हो गया होगा कि सच ये हो रहा है. Is that possible?
Is that what? नहीं, ऐसा कुछ वो सर नहीं. I just went. They called me. I went there, picked up and came down. That's it. It's the last award. It's like a Filmfare award था ना वैसा. Last award था. They gave it to me and I came down. I didn't even say thank you. Nice. नहीं बोला मैंने. Nothing at all. Nothing. पता ही नहीं पड़ा. Just got it. It's there. It's just It's lying there in my shelf now, but it's a big thing. But it's a big deal. Yeah, it's absolutely a big तो deal. other और एक हुआ recent year, last year. I think last year आपने बताया हाँ. एक award मिला मुझे among the top 100 influencers with the reach of over 100 million. Right. G20 summit. वो G20 दिल्ली में मिला मुझे विज्ञान भवन में. Okay. They called me. वहाँ पे आपने बात की कि नहीं? वहाँ पे भी नहीं. नहीं. वहाँ उन्होंने बोला कि we are giving an award because you are the top 100 influencers. I said okay. I said I'll come. I'll receive it. तो मैं गया because G20 summit विज्ञान भवन ऐसे जाना चाहिए. तो मैं गया तो अवार्ड लेके वापस. Okay. Yeah. So that was your last year's award. Yeah, last year. When did you start your social media journey? Last year. Oh, you started last year, First and you have already gone up to 1 million followers. Last year. वो क्या होता है मेरी एक आदत है बिट ब्लंट में. मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ब्लंटली बोल देता हूँ. कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है. तो मैंने एक ग्रुप में कुछ लिखा था गाबा ज्ञान. तो it was actually a taunt at someone. Okay. I'm being very blunt. It was taunt at someone, but without saying his name. हाँ. So they felt bad. So I said, अगर गाबा ज्ञान तो मेरे दिल की बात है तो फैक्ट. तो why not start a गाबा ज्ञान on Instagram. तो मैंने वहां पर शुरू कर दिया गाबा ज्ञान. Okay. I used to post on weekend गाबा ज्ञान, जो दिल की बात है बोल. जैसे मैंने आज आपको बोल once a boss always a boss. हाँ. तो ये भी मैं गाबा ज्ञान में बोल दिया. मैंने बोल दिया हुआ गाबा ज्ञान में बोल दिया. तो वहां बोला अगर गाबा ज्ञान बोलता हूँ तो रोज कल क्या मार्केट क्या लगता है वो भी तो बोला. तो उसके लिए मैंने 1 मिनट का मैंने वीडियो डाल देता था. हाँ. और पोस्ट करके डाल देता था. आई शुड नॉट इवन एडिट इट. हाँ. तो आहिस्ता ही तो फॉलोअर्स बढ़ गए. 1 मिलियन हो गए मुझे पता नहीं. Okay. मतलब people must accept like. हाँ, accept it. Absolutely. And that's how it is. I mean, your knowledge and your thought process and your experience already वो पता ही रहा है हमें कि कितना आपको knowledge है इसके बारे में. You know, अभी मैंने एक एस इब्राहिम का भी जो लास्ट वीक गया था प्रार्थना में, वो भी मैंने एक बनाया है लेकिन पोस्ट नहीं किया. लेकिन पोस्ट कर दूंगा. You're about to post. रेडी बनाया है, बना पोस्ट कर. Looking forward for it. You know, I want to ask you, sir, with your experience, right? बहुत सारे नए ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर और आपने जो बताया ना एक चीज स्पार्क कर रही है मेरे अंदर और ये मेरे को आपको पूछना है. जैसे आपने बताया कि पहले आपने जो इन्वेस्टमेंट किया करोड़ों रुपए आपके पास थे, आपने उसको लूज कर दिया इन स्टॉक मार्केट बिकॉज आपको ये बोलना था कि नहीं मैं ही सही हूँ, वो ऊपर ही जाएगा. बहुत सारे लोग के अंदर है ना फाइटर स्पिरिट नहीं होती है और वो इन्वेस्ट करते हैं लाख रुपए 2 लाख रुपए एंड देन व्हेन दे लूज दैट मनी दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड. How would you guide those people के वो फाइटर स्ट्रेंथ कैसी लानी चाहिए before you enter into this amazing profession where you can make a lot of money but then you can also lose a lot of money. एक बात का ख्याल होना जरूरी है कि हम सब आते हैं कमाने के लिए. मुझे एक आदमी नहीं मिला ट्रेड जो आता है लॉस करने के लिए. मैं पैसा लिया आज लॉस करूंगा, या आई लॉस मनी. कोई एक आदमी. Everyone wants to make money but they end up losing. They end up losing money is a reality. Out of 100 traders, 92% lose money. मतलब the chances of losing money is more. आपको खाली इसका अंदाजा हो, रियलाइजेशन हो कि लॉस होगा मेरा. खाली इतना अंदाजा कि मेरा लॉस हो सकता, तो मैं अपने आप को बचाऊं. फिर आपको लगता है यहाँ पर आग है, आग मन बड़ी चीज, आग में मेरा उंगली जल सकती है. तो आप उसके आपको कॉशन करते नहीं करते, टच नहीं करते. हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट. खाली उतना अंदाजा है कि आई कैन लूज मनी. वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं. बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी. वो आते हैं पैसा कमाने के लिए, लॉस पॉसिबल है. वो खाली ध्यान रखना चाहिए मुझे यहाँ पर दर्द हो सकता है. हाँ. So cautious moment is very important. नहीं, you have to be aware of it that this is possible and how do I protect myself. And that can keep them safe from it. And can meditation be one of those saving factors? It can help, not one of the things. It can. Okay, it can help because clear mindset होना बहुत जरूरी है while you are trading. Because आपका जो memories में ये we are like an iceberg, 1/8 outside, 7/8 inside. जो हमारे अंदर की जो voices है ना, inner voices, they trouble us a lot. Consciously, unconsciously trouble us a lot. अगर आपने समझो कि
मेरा एक याद है कि एक जगह पे मैंने एक्सीडेंट किया था। मैंने एक स्कूटर बैंक कर दिया था ओके। बस को। हाँ। मैं यंग डेज, जब भी मैं वहां से पास करता हूँ तो मुझे वो याद आता है कि मैंने स्कूटर एक बैंक किया था बीएसटी बस को। हाँ। व्हेनेवर आई पास कैटल रोड, हाँ। उसी जगह पे स्पॉट पे याद आता है। ये मेमोरीज है, मेमोरीज है। हाँ। स्टेज इन योर बैक। आप उसको रिफ्रेश नहीं कर सकते। So the memories trouble you your today. It spoils your today. हाँ। Your imagination spoils your today. Because what is going to happen? ये मैं कितना पैसा कमाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, फ्लैट लूंगा, that spoils your today. Okay. Yeah, I will lose money, that spoils your today. So you're making money, you'll, because जो profit है वो भी चला जाएगा, that spoils your today. Spoils your today. You to be in the moment. Perhaps meditation. Okay. And that calms you down at that point. It helps. When you focus on your breathing, that's a now. पहला जो हो गया उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो होने वाला है उसका भी करेंगे। इसके अंदर आपने ना एक बहुत अच्छी चीज बोली कि आई वांट टू कनेक्ट दिस टू अ डिफरेंट टॉपिक हियर। आपने बोला कि कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना मैं शोहरत कमाऊंगा, मैं ये बंगला खरीदूंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा। कैन वन मैनिफेस्ट एंड कैन मैनिफेस्टेशन बी अ बिग पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड स्टॉक मार्केट ट्रेडर? यू हैव टू बी पॉजिटिव। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा जो लोगों को शायद बुरा लगेगा सुनकर, लेकिन मैं तो बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा 100% बोलूंगा। हमको हमारे पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। हमको कॉन्फिडेंस है ऊपर वाले पर, जिनको हमने देखा। सबसे भरोसा ऊपर वाले पर, उसके बाद भरोसा आसपास वालों पर रखते हैं, मदर, फादर, स्कूल टीचर, फ्रेंड्स, उसके पास भरोसा रखते हैं। और फाइनली रखते हैं भरोसा खुद पर। वो भी अगर थोड़ा बचा तो। What lack of confidence will never take you anywhere. अगर करना है जिंदगी में कुछ, तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर। फर्स्ट ऑन योरसेल्फ, देन ऑन योर peers, your friends, your guru, your family, their support systems, जो आपको सिखाता है टीचर, उस पर रखो। एंड फाइनली ऑन द टॉप। मुझे ध्यान है मेरे फादर बोलते थे, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा बोलते थे। मुझे उस समय समझ में नहीं आता, पर तू मेहनत कर अपनी, वो भी ऊपर वाला भी मदद करेगा। इंग्लिश में हम बोलते हैं गॉड हेल्प्स पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स। आजकल शायद शाहरुख खान भी बोलते हैं पूरी कायनात, मतलब उसका डायलॉग मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना मेरे फादर को, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तू खर, मेरे फादर बोलते तू अपनी मेहनत कर, बाकी छोड़ दे उसको। हम वो ही नहीं करते। अगर किसको बुरा लगता है उनका प्रॉब्लम है, डील विद इट, लेकिन खुद पर करो। खुद पर भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट। God we have created in our mind, whether he's there or not there, I don't know, but my parents are there. And I think you have a free will for a reason. I have no idea. I don't want to be an expert there. लेकिन आपको खुद नहीं करोगे तो किस पर करोगे? हाँ, absolutely. आप बोले कि सब वो करेगा, कैसे चलेगा? आप नहीं करोगे वो करेगा? Not possible. You know, you're talking about very similar to a concept of herd mentality. वो बोलते हैं ना कि आपने बोला कि आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। To hell with them, वो आपको चाय भी नहीं पिलाएंगे। हाँ, exactly. It's like ऐसा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको फोकट में गालियां भी नहीं मिलती है। गाली खाने के लिए भी किसी को सताना पड़ता है। I agree. तो चाय कौन देगा? I agree. स्टॉक मार्केट का टिप कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो आपके साथ तो आप ही सब अकेले, अगर आप ही खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा? Number one rule, have faith on your own self. 100%। अपने भरोसा रखो कुछ करने का। मुझे काफी लोग, मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं क्या मैं कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाऊंगा? खुद पर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं पाऊंगा। हाँ। खुद पर भरोसा है तो सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद आप, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका एफर्ट्स 100% है, जेन्युइन है। सवाल ही नहीं कि आप लॉस कर सकते, लूज करें। यू विल विन, इट मे टेक टाइम, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन सक्सेस इज गारंटेड, गारंटेड 100%। But if only you're focusing and having faith on yourself. आपको मेहनत करनी है, जेन्युइन एफर्ट्स करना है। अरे एक ड्रॉप गिर के सालों में पत्थर पर होल कर देता है। Persistence pays. Slow and steady wins the race. I don't know about slow and steady, but persistent pays. आप करते रहो, ड्रॉप गिरता है, उधर होल हो जाता है, पत्थर में होल हो जाता है। आप देखो सीशोर पे जाइए, आपको वहां पर वेव्स मार के पत्थर राउंडेड हो जाता है। Agree. हम कौन है? Agree.
Who are we? We are nobody. I'm glad, yeah. I think this is a great tip that you have given. Comparatively to जो नए traders है, they should follow this particular aspect. I think ये चीज matter करेगा, following the fine line between being a gambler and being a trader. Possible. If it can help themselves, very good. Do it, please. Great. And if they cannot, call me up. I'll fire you. I'll fire them, really. I'll fire the hell out of you. Okay, cool. I think you'll do pretty good as well. Trust me on it. You'll do pretty good. I'll tell you, 2009 में मुझे paralytic stroke हुआ था. Okay. I was completely paralyzed at my left hand side. Left hand side, I was like, this. मेरी उंगलियां नहीं चलती, zero हो गई. Oh, you had a full body की Full बात body कर रहे हो? left hand side. Oh wow. Okay. Paralytic stroke. 2009 है 3rd March. Okay. आज है 2024. 24. Yeah. 3rd of March. 15 साल हो गए. मुझे ध्यान है. It took me around 6 weeks. Mm-hmm. मैंने फर्स्ट डिसीजन लिया, मैं I'll sell my Mercedes, क्योंकि बड़ी गाड़ी. मेरी वाइफ बड़ी गाड़ी नहीं चला सकती, मैंने Mercedes बेच दी. Okay. मतलब व्हाट्स आइडिया, जंप हो जाएगा. My wife had a small car, she was driving a small. But within 6 weeks I drove my car. My wife's car. Within 6 weeks. Okay. सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने मेहनत की अपने ऊपर और मैंने गाड़ी चलाई. Then I can drive a car. Early morning, slow reaction से within 9 months I became okay. 99%. And that is a very quick recovery. And 28th day को मैं एक CNBC अवार्ड पे गया था. It took me 90 minutes to dress up. 90 minutes to dress up. To wear my trouser, my shirt, my tie, my jacket. 90 minutes. मैंने छोड़ा नहीं. My wife didn't help me. She was sitting next to me. Yes, do it. आप यहाँ से तो कफ लगा दोगे. इसका कफ कैसे लगाओगे? इसका कैसे लगाओगे कफ? Yeah. बटन. टाई तो लगा दोगे. 90 minutes to I came आपके सामने हूँ. It's because of the effort that I put in. What did you learn during that phase of your life? I don't know. You can do it. Anything you put your mind to. You can do it. मैंने अपने आप को heal किया from here. Was there any kind of आप कोई affirmations use कर रहे थे वो time पे? Yes. Okay. What was that affirmations? With every breath that I take, I'm getting better and better. And every day आप वो consistently बोल रहे थे. I said it maybe thousands of times. I don't remember. Wow. Your life journey has been, I feel like, nothing less than a big time roller coaster. You're consistently going up and going down and going up and going down. And you've definitely been a fighter. मैं जब भी आपका वो content पढ़ रहा था, उसके अंदर was said something about you shooting rifles. Tell me and please let us know more about that. Not rifle, pistols. Pistols. अच्छा, okay. क्या बचपन से वो मैकेनास गोल्ड फिल्म देखी थी, $1 silver, क्लिंट ईस्टवुड की, तो लगा था कि शूट करेंगे. हाँ. तो जब वर्ली सीफेस पे रहने गए तो राइफल रेंज पास में था. हाँ. और मैं उधर गया तो उसमें मुझे गया वो कैप्टन इजिकल, तो बोला बुलेट कितने का, तो बोला 30 पैसे. ओके. मेरा पॉकेट मनी था 50 रुपीज उसमें, तो आई कुडंट अफोर्ड, क्योंकि उस समय मैं फ्लाइंग करता. तो फ्लाइंग में मेरा हड़प से आना, पुणे में जाना आने में ट्रेन का 10 रुपया लग जाता था. तो उधर फ्लाइंग करता था हर हफ्ते. तो मैंने उसको छोड़ दिया. फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद फिर गया मैंने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बुलेट, तो बोला 80 पैसे. तो मैंने शुरू किया. तो मेरा फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप हुआ 1983 में. और कल हमारा, और वो वहीं से शुरू हुआ. काफी नेशनल्स किए, लेकिन इट्स अ फुल टाइम जॉब. 6-7-8 घंटा मेहनत करनी टू बी स्टेइंग एट दैट लेवल. मुझे पता है, मेरे फादर ने एक दिन मुझे बोला, बेटा धंधे पे ध्यान, पैसा कमाओगे तो गोली खरीदोगे, जब पैसा नहीं कमाओगे तो गोली कहाँ खरीदोगे. दैट मेड सेंस टू मी. मैंने वहां पर एक विड्रॉ करी, लेकिन वो लव था पिस्टल का. तो आज भी मैं कनेक्टेड हूँ. आज मैं एक एडवाइजर हूँ टू महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन. वो महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन है हमारा. It's a fully 100% only sportsman involved, no politician involved. Okay. और मैं उनका एडवाइजर, और एक कल AG है. You're going towards that then. So That's I'm awesome. still connected with that. So I'm basically a sportsman by heart and a very dedicated sportsman. So you're a sportsman by heart and born for trading. Possible. Yeah. Basically, I'm committed now. Very committed. It's a commitment. A commitment towards everything
सो आई अचीव एक्सेलेंस। Okay. अगर आपका कमिटमेंट नहीं हो तो एक्सेलेंस नहीं मिलता। अभी Of जैसे कि course. ग्लाइडिंग जब मैंने शुरू किया तो मैंने कुछ 42 लॉन्चेस में मैं सोलो गया, वो रिकॉर्ड है, अब तक टूटा नहीं है। Oh really? Yeah. You've done solo glides. सोलो फ्लाइंग ग्लाइडिंग करके ले जाओ 42 लॉन्चेस, लोग 150-200 लॉन्चेस देते हैं, मैंने 42 में किया, Okay. बिकॉज आई वाज दैट गुड। Okay. अब मैंने बीच में एक प्लेन फ्लाई किया था, आफ्टर विद इन 6 वीक्स ऑफ माय पैरालिटिक स्ट्रोक आई फ्लो एन एयरक्राफ्ट सेसना 172। Hmm. मैं उसको टेक ऑफ किया, लैंड भी खुद ही किया, फर्स्ट टाइम जिंदगी में किया। Hmm. क्योंकि अगर ग्लाइडिंग कर सकते हैं जिसको पावर नहीं है, यहाँ तो पावर है, हाँ एक्चुअली यहाँ पे तो आप कंट्रोल में हो। कंट्रोल, वहां पर तो कुछ ही नहीं, आई हैव ओनली वन चांस टू लैंड, हाँ आइदर एग्जैक्टली। यू क्रैश और यू लैंड। हाँ अब वो कर सकते हैं जहाँ पर पावर नहीं है, 1.5 वोल्ट बैटरी नहीं है, हाँ यहाँ पर तो पावर, यू कैन यहाँ ऑलवेज पर, टेक ऑफ। तो यहाँ पर मैंने टेक ऑफ किया, घुमा कर 1 घंटा लैंड भी किया। ऑफ कोर्स जिसका एयरक्राफ्ट था ओनर हाँ था, he was with you. हाँ बट आई डिड इट हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। हैंग ग्लाइडिंग मैंने शुरू किया 83 में, okay. वो भी खुद ही किया। तो बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बताया ना, अगर मेहनत दिल से करो, 100% करो, सक्सेस इज गारंटी, Success again. गारंटी। Fair enough. You know, I'm gonna take you back again to your profession. 20 plus years of experience that you have trading के लिए। आज जो हमारे नए लड़के आ रहे हैं जिनको ट्रेड करना है, आप उनको अगर in short कुछ सलाह देना चाहेंगे तो वो क्या रहेगा? लर्न एंड डू, Learn and do it. दैट्स इट, लर्न, Okay. प्रैक्टिस एंड ट्रेड। Now, how long a person needs to learn before he can start doing it by himself? इट्स नेवर टू लेट, आई एम स्टिल लर्निंग, लर्निंग अबाउट योरसेल्फ इज Learning about yourself is more important. लेकिन लोग सीखते नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है और फिर ट्रेड करना, Hmm. ये प्रोसेस है। वो आई थिंक वो बोलते हैं ना, एक चीज है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जो लोग पहले सोचते पहले अर्न तो कर लूं फिर सीखूंगा। अभी पिस्टल शूटिंग में मैंने सीखा, तो सीखा ना। हम्म स्नो स्कीइंग करता हूँ 48 ईयर्स से, सीखा ना, सीखा, पिस्टल शूटिंग सीखा, स्नो स्कीइंग सीखा, हैंग ग्लाइडिंग सीखा, ग्लाइडिंग सीखा, फ्लाइंग सीखा, सेलिंग सीखा, राइडिंग सीखा, सब सीखते हैं, फिर हम ट्रेडिंग क्यों नहीं सीखते? साइकिल चलाना भी तो सीखना पड़ता है, हाँ एब्सोल्युटली लेकिन हम ट्रेडिंग क्यों नहीं सीखते? हम अज्यूम की करते हैं कि हमको आता है। आता है। हाँ, और ये आप बहुत सही चीज बोल रहे हो। ये एक ऐसी चीज है ना जो सबको लगता है सब मुझे आता ही है। ये 1.5 शाना मैंने कहा ना पहले, हाँ शाना वो है और 1.5 चीज, शाना, right? वो हाल मेरा भी वही हाल था। मुझे लगता है स्मार्ट तो आता, नॉनसेंस। इफ यू आर स्मार्ट एट समथिंग, नॉट एट एवरीथिंग। मैं डॉक्टर के नहीं बन गया, वो नहीं आता है मुझे। अगर करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। यू नो नाउ अभी जो हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, AI has taken a lot of work. जैसे हमारे एजेंसी के अंदर lot of our content work is taking care of AI. How do you think stock market के अंदर will AI be any help? Of course, why not? Strategies create करने of के course, अंदर? create करने में आएगी। You can test your strategies and then execute. But can it be blindly followed? Is something that you have to always be part of के ये चल strategy डाल दी हो गया कि आपको पहले वो टेस्ट करनी है। टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। The flow has to be tested, and market will do what it wants to do. ये accept it. So you'll have to have certain strategies will be more right than wrong. There'll be edges required. वो edge आ गया, you control money, you're fine. यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट को आप निकाल सकते हैं, हाँ वो जरूरी है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग तो वही होती है ना आजकल। तो absolutely. आपके रूल्स हैं, आपको एज है, आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं और आप कर रहे हैं। एआई में आप अपने आप को निकाल रहे हैं, लेकिन कर तो वही रहे हैं। कर तो वही रहे। हाँ, I think recently there's a thing called algo trading and all वही these algo ही है। things. Yeah, so that has वो ज्यादा powerful रहेगा कि as a human manually आप करो, वो ज्यादा What's powerful wrong? रहेगा। Algo is good, na? Algo is good. Is following all the rules. हाँ That's better than you following the rules. Following Because the you rules, can flaunt, you can flunk, you can lose money, you can make a mistake. वो तो नहीं करेगा ना। हाँ, because वो एकदम because it's a complete machine, then it's going to follow that particular Yeah, rule. absolutely. So algo is very good. हाँ, वो ego play नहीं करेगा। ना ना। Yeah. I use algo for something. Okay, you do Connected algo. of Okay. course. Okay. एक और चीज stock marketing the most important factor right now ये हो जाता है कि हमें ना, आपने जैसे पता है बोला कि खुद पे भरोसा नहीं होता है, आजू बाजू में ज्यादा भरोसा होता है। एंड हमारा ना एक ग्रुप होता है जिसके अंदर टिप्स आती है, ये एक बाय कर, ये ऊपर जाएगा, ये बाय कर, अरे ये सेल कर, ये जाएगा। वो चीज से कैसे बचे? आपको कौन देगा फ्री टिप्स? वो तो आपको गाली भी नहीं देगा, मैंने पहले बताया। हाँ। जब तक आप किसी को सताओगे नहीं। फ्री आपको टिप देता है मतलब आपके जेब में पैसा डाल रहा है। इतना
बेनेवलेंट इंसान मैंने देखा नहीं. So there's no such thing as free tips That's at all. nonsense. Stay away from those groups. दूर जाओ, stay away from me. मेरे नाम पे बहुत फेक वेबसाइट्स हैं. लास्ट ईयर में there were more than 3,200 fake websites in With my your name, really? name, photograph, नाम बदली करके दे रहे हैं. Taking money in my name. They're all fake. Oh, be careful, guys. अगर कुछ More है than ऐसा, 3,200 last year. okay. अगर जैसे ये है तो this is a very huge thing. तो अगर किसी को आपसे साथ टच में आना है या मेक श्योर करना है कि this website is legit, how can they find that? मेरे पास एक ही वेबसाइट है, मेरा खुद का, prakashgaba.com. Okay. वन. यूट्यूब का है प्रकाश गाबा ट्रेडर. Hmm. इंस्टाग्राम का है प्रकाश जी गाबा. दैट्स इट. और कोई है ही नहीं मेरे पास. Okay. So अगर आपको कुछ और तरीके से कुछ और मिल रहा है या इनके तरफ से मैसेजेस आ रहा है, मेक श्योर ये 3 चीजें है और ये आपको मैसेज करेंगे नहीं. कभी नहीं करता. इनके मैसेज करना है. Absolutely. So be very careful and be very vigilant because अगर ये चीज है, so you need to be careful that you're not falling into the wrong trap here, which is very important. Coming us to the fact where the growing of the industry as of right now, what do you think के future क्या है as of stock market का? वेरी गुड फ्यूचर, एक्सेलेंट फ्यूचर. Can people still start this as a profession? व्हाई नॉट? कि ये बहुत high हो गया है. at 47. If I can do it at 47, why can't you do it? But even now, being the Nifty is being at all-time highs, Sensex is being, How does it you can matter? still make money How out of does it, it matter? Why put a ceiling? Sky is the limit. and still can grow as long Of as you course. follow the right routes. Absolutely. Control your risk. Take a heaven edge and think long term you'll make money. What's wrong in that? आज मार्केट हम बैठ के 10 साल के बाद देखो मार्केट कहाँ है. एंड दैट्स द बेस्ट प्लेस टू हैव स्टॉक. एफडीज में कितना मिल जाएगा? 7, 8, 9%. Hardly. हियर स्काई इज द लिमिट. Mm. Sky is the limit. Safe place to be. If you stay invested for long term, good A-class stocks among the top Nifty 50, Mm. dividend paying company and growing company, how can you go wrong? Momentarily नीचे आ सकता है, हाँ. Just for the but time it will go up because it's dividend paying companies, growing companies. How can you fraud? Momentarily आपके खरीदने का नीचे आ सकता है, that's possible. लेकिन after 2 years will be up because growing company. And here we are talking about a long time investment. Absolutely. अगर आपको नहीं आता है तो stay long term. आता है तो short term. Short term. मैं इंट्राडे करता हूँ. आप इंटरडे करते हैं. You're a master know of it. intraday at all times. Okay. I know I can do it. Cool. Alright. It's like this. आपको Fiat गाड़ी चलानी है और वही कंपनी Formula 1 भी चलाती, गाड़ी बनाती है. Absolutely. मैं नहीं चला सकता Formula 1. वो अलग स्किल है, ये स्किल अलग है. लेकिन आप Fiat तो चला सकते हैं ना. But you're a Formula 1 driver for the stock trading, right? Yes, Trade I market, am. you can say. I'm not humble. I'm saying. Absolutely. आप उसको arrogance बोलेंगे, your problem deal. No, I think I call it confidence. Because I've seen your work. I know how wonderful. I've seen how many people follow you and the way you are. So definitely, I don't think I'll call that arrogance. I'll definitely call that confidence that you have been through the journey of life that you have taught you so many things at that point of time. Thanks. What's your thought process के Indian financial market का future कैसे लग रहा है so far आपको? Superb. India is the best country to be in. We are already at 4 trillion economy. पहले 3 थे, 4 हो गए. In 2026 में शायद we'll become number 3 economy in the world. What is your thought process in terms of having American economy, and are we too much behind financially? We are number 3. Look at Europe. We are bigger than Europe. All Europe put together. Once upon a time, British ruled the world. Sun never set on the British Empire. Where is the British Empire today? Yeah, the sun never rises on them. We are India. अभी हम लोग को लूटने सभी लोग आए. सबने लूटने को आए. Everyone came to India to loot India because India was something. सोने की चिड़िया जो बोलते हैं. दूध की नदियां बहती थी. Why would they come to? Why would anyone not go to Iraq to loot? वहीं से अब यहाँ लूट करने को क्यों आए? ये लूट करने को आए ना. हाँ, absolutely. ब्रिटिश भी लूट करने आए ना. मुगल्स भी तो लूट करने आए ना. They came to loot India because India was something. अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कहाँ से लूट करें? आज भी हमारे पास जो रिसोर्स है is amazing. Look at mathematics Ramanujan. Yeah, absolutely. I mean उनकी mathematics amazing. मैं आपको एक बताता हूँ. हम एक सीरीज बोलते हैं Fibonacci सीरीज मैथमेटिक्स by the name of Italian mathematician. Okay. Fibonacci. वो एक नेचुरल सीरीज है. शायद आपको पता नहीं है, नेचुरल सीरीज है. वो हमारे शास्त्रों में है. Okay. शास्त्रों में
मैंने उस पर काफी रिसर्च किया है. आई met the professor, IIT professor in Sanskrit. शास्त्रों में है, they have taken away from पाई का जो फॉर्मूला है 3.14, पाई का जो फॉर्मूला लिबिनिस ने किया. आप चले जाए साउथ में, हमारे ऑल्टर्स बने, द स्क्वायर एंड द सर्कल एंड द ट्राइंगल इज देयर. दे न्यू द फॉर्मूला ऑफ पाई way before. much before. In the every household if you go in south is there. So Leibniz को बोलते हैं, ये famous known है. Leibniz is the guy known for pi formula. Nonsense. यहाँ पर go into city south में आप every village you go there, they make it there. वो कहाँ से बना है? And there is there in the shastras. मैंने इस पर रिसर्च किया हुआ. Is there. तो हम तो है हमारे पास. हमारे फ्यूचर ऑफ इंडिया इज अमेजिंग. अनलेस अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने हरीश साल्वे को सुना. Okay. बोला we doing a lot of research on hydrogen power. Yeah, correct. We are much ahead in hydrogen power, Indeed, yes. which the world doesn't want us to do. That's energy. They are after India only because of that. पहले 10 साल 12 साल पहले में डिफेंस में हम कहाँ थे? Where were we in defense? We were only importing. Yeah, exactly. Today we are exporting. We are making our own aircrafts, our own rockets. Who's done this? Modi. And let's take it. This present dispensation has done 3 things. Very clear. The world is against us for 3 things. We are not buying arms from them. Reduce our arm dependence. Oil we buy from Russia. We are not buying from them. That the Americans don't like. Yeah, indeed. Vaccine we did not buy a single dose. The pharma lobby is against it. All these 3 lobbies are against it. Some people are not going to like this. Their problem, deal with it. So you're saying the Indian economy is definitely going to boom. 100%. So why is it? Time to be in India. Yeah. So what's the reason कि आजकल जो हमारी youth है बहुत सारे other countries में move out हो रहे हैं? What could be that reason? They started long back. The drain started long back. यहाँ पर opportunities नहीं थे. आज वो लोग जा रहे हैं. I'm surprised why they are going. Maybe because they like that, पहले हम जाते थे, वो गाड़ियाँ अच्छी है, टोयोटा गाड़ी चलाएंगे. आजकल नहीं मिलता था. I remember asking my uncle and aunt, which car do you drive? तो Toyota. Wow, Toyota. तो आज यहीं पर टोयोटा मिलता है. Exactly. उस समय नहीं था जब वो कहते हैं. आज तो है यहाँ पर. You're buying a Mercedes. Absolutely. I think we have some of the most nicest and high-end cars. ये ना लोकल हमारी महिंद्रा की जो थार है, सब with pride made in India. The most beautiful car. Absolutely. With Pati pride smile, made you in can see India. Pati smile already. जो मैं खुद चलाता हूँ. It's lovely car. मजा आता है चलाने को. तो अब उधर जाने की जरूरत क्या है? पैसा ही कमाना है, खाते तो 150 ग्राम है. Absolutely. So Indian economy is definitely booming. The kids who are going outside of India, think about it. हम यहाँ पर अभी grow हो ही रहे हैं, होने ही वाले हैं. And you think the stock market is still there and is going to always be there and make you money as long as you believe in yourself and you follow the right techniques. Absolutely, 100%. 100%. Great. The future is good for India. I have faith in India. Full faith in India. Full faith in my India. All right, sir. So we'll do a quick fire round with you. I'll ask you a question and let's keep it like maybe 1 to 2 words. Okay. What's the biggest lesson you learned from your paralysis journey? You can do it. You can do it. एक मंत्र जो आपको हमेशा tough time से go through करने की ताकत देता है. Never give up. Okay. Never give up. Never give up. When the time comes to give up, that's the time to try harder. So when time comes to give up, you do harder, work harder. That's the time to try harder. So never give up. Okay, wow, that's great. What was your first thought that crossed your mind when you were diagnosed with paralysis? I can trade. This was right hand side. Was working. You were still working. My right hand side was working. So the first thought is I can trade. Okay. First thought. All right. What is the one affirmation you practice daily without fail till date? I can do it. How did a break from work affect your mindset? Or did you even ever take break? No, I still work. Never a break. Never. Always. So you have never a person who's ever taken a break? No. For me, if I go for a holiday, I still work there. You're still working. You're still trading. If I go to Delhi for a some work, I'll make sure that I have a workshop there. Is it so? You always. If I go to Bangalore, I'll have a workshop there. 100%. 100%. Only Kashmir I don't for a workshop there, but I do. The rest of the places you always create. I have a workshop there. If I go to Pune, I have a workshop there. If I go to Hyderabad, I have a workshop there. Announce a workshop. Jisko aana hai, aa jao. Okay, wonderful. If you could redo one thing during your recovery, what would that be? Redo one thing that I could do recovery? Like while you were recovering from your paralysis? I did exactly the way I did. That's why I recovered. That's how you recovered. Nothing I would change. Okay.
Biggest change you notice in yourself after overcoming this particular health challenge? No, there's nothing. You were still the same, and you were Absolutely. For me, it's every day wake up, like it's a routine. I never give up. I just never give up. never give up. One thing that surprised you about your healing process? You don't surprise me. I was sure about it. Your mindset आपने वो सोच करके रखा Never था. surprised me. Great. What was your most powerful manifestation you have ever experienced? Today is the first day of the rest of your life. Wonderful. And how has your views changed after your major health setback? Views have, today, I mean, views have changed in the sense that live life one day at a time. Live life one day at a time. Don't worry about the future and One don't day. worry about the past. My father used to have prayer, I'll tell you. He used to pray that, Lord, you've taken care of my day. At the sunset, he used to say that prayer. In the morning, while taking a shower, he used to say, Lord, you've taken care of my night. Take care of my day. So he used to live for half day. Oh, okay. I live for a day, but he used to live for a half. For a half day. And he died praying that. Wow, that's amazing. That was great motivation. You've taken care of my half day. Take care of my night. Night. You've taken care of my take care of my day. My younger brother still says the same prayer. Every day. Twice a day. Wow. Half day guide. I do one day. We will one day. Okay. Great. And I want to ask you before we round this up. आपने बताया workshops आप करते हो. जी जी. तो अगर let's say somebody wants to learn from you directly, how can they get in touch with you? PrakashGaba.com. And Or my आपका number सारा- 9322210907. Call me up. I pick up my own phone. Oh wow, that's a huge deal, guys. Like, so he's given you directly his number. Reach out to him. Don't spam him. Make sure you're being very kind. Don't call after 10. हाँ, रात को don't 10 बजे के बाद फोन मत कीजिए. phone बंद ही रहेगा. Don't call me up, please. No, I've so, kept on silent so I don't get to know. Yeah. But please don't call me up. हाँ, so be nice. Don't spam his calls and reach out to him directly. He's there to help you out, and he'll make sure that he's guiding you correctly. अगर आपको लग रहा है कि आप stop loss नहीं कर पा रहे, so call him up. He'll fire you. I'll fire the hell out of you. Alright, he'll fire the hell out of you. So make sure you do that. Today has been the most challenging podcast for me as well. He has a personality which is super amazing, full of energy, and I think मेरे को कहीं ना कहीं लग गया कि आज मेरा energy थोड़ा डगमग हो गया इनकी energy के against. But I really enjoyed my podcast today. There were so many things to learn, so many thought processes that he shared about his personal life, how he takes his life ahead, one thing at a time, doesn't worry about the future and doesn't care about what has happened in the past. एक चीज जो उनसे सीखना है कि जो हुआ है उससे सीखो और वो आगे अप्लाई करो, भूलो नहीं बट उसे अफेक्ट नहीं करने दो. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ व्हिच आई थिंक कैन मेक यू विन. इंडिया एक सोने की चिड़िया थी और इंडिया एक सोने की चिड़िया है और रहेगी, and we are going to grow as an Indian financial economy, and that's a guarantee. Even Prakash sir has confirmed that. I really hope that you have enjoyed today's podcast with us, with Prakash Gaba sir. If you like to listen, we are on most and the major platforms on audio. We are on Spotify, Amazon, Gaana, and many more. We'll have the list in our description. ये सारे आपके ट्रेडर्स के साथ शेयर कर दो, जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग पैसे लूज कर लेते हैं, जो शायद गैम्बलिंग की तरह से लेते हैं, सबके साथ ये शेयर कर लो. Follow our Instagram account @Kabirwani. Subscribe us on YouTube @Kabirwani. And the people who have already subscribed to us,